हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर यशराज परदेशी। आज हम पढ़ेंगे अबाउट वायरल डिसीजेस। पहले हम पढ़ते हैं कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड इज कॉज बाय ग्रुप ऑफ वायरसेस कॉल्ड राइनोवायरसेस। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन डिसऑर्डर. इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू ड्रॉपलेट रिजल्टिंग फ्रॉम कफ, स्नीजिंग एक्सेट्रा. इट लीड्स टू अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट infection, that is URTI. It causes nasal congestion and nasal discharge, sore throat, hoarseness of voice, cough, headache and tiredness. It usually lasts for 3 to 7 days. अभी हम पढ़ते हैं दो mosquito borne diseases, that is chikungunya and dengue fever, also called as breakbone fever. Chikungunya का पैथोजन है चिकनगुनिया वायरस. इट इज़ अ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस. The vector is the mosquito Aedes aegypti. This disease causes fever, joint pain, lymphadenopathy. Dengue fever, it is a dangerous mosquito-borne disease transmitted via Aedes aegypti. It is the pathogen is Flaviarbovirus dengue virus. It is also ssRNA, that is single-stranded RNA. ये उसका जीनोम है जो हम जेनेटिक्स में भी पढ़ेंगे. The symptoms are fever, severe frontal headache, muscle and joint pain, and bleeding from nose called as epistaxis, mouth and gums in severe cases. So bleeding may occur in severe cases. डेंगू फीवर में क्या होता है, प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है सीवियर केसेस में. उसे हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. सो इट में लीड टू bleeding disorder or internal bleeding. So it may prove fatal. डेंगू फीवर. तो ये जो दोनों डिसीज़ है चिकनगुनिया और डेंगू फीवर, इसका मेंशन एनसीईआरटी के पेज नंबर 150 पर भी है, तो वहाँ से आप देख सकते हो. वहाँ पर फिर दिए है व्हाट आर द मेजर्स टू प्रिवेंट दिस डिसीजेस. सो रेगुलर क्लीनिंग ऑफ हाउस होल्ड कूलर्स, यूज ऑफ मॉस्किटो नेट्स, इंट्रोड्यूसिंग फिशेस लाइक गैम्बूसिया इन पॉन्ड्स दैट फीड ऑन द मॉस्किटो लार्वा, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, proper drainage facility. Okay, wire mesh to prevent the doors and windows should be provided with wire mesh to prevent the entry of mosquitoes. Such precautions are very important in the to prevent the spread of these vector borne diseases. Okay, so this is about the two important vector borne diseases, viral vector borne diseases, that is chikungunya and dengue fever. These two are transmitted via the bite of Aedes aegypti mosquito. Okay, so these are this was about mosquito borne diseases. Now we will study about हेपेटाइटिस और वायरल हेपेटाइटिस. तो पहले हम पढ़ते हैं हेपेटाइटिस बी के बारे में. इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय द पैथोजन HBV. इट इज़ पार्शली डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस. ठीक है, तो यहाँ पर बहुत बार क्वेश्चन आता है इसका जीनोम, पार्शली डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस. इट में अफेक्ट लिवर इन a very bad way, or it may result in severe liver damage leading to jaundice, and it may prove fatal. ये जानलेवा हो सकता है हेपेटाइटिस बी. द वैक्सीन इज अवेलेबल, रिकॉम्बिनेंट DNA वैक्सीन produced in East. The mode of transmission is it is sexually transmitted disease as well as it is parenteral. Parenteral मतलब it enters the body in a manner other than through digestive tract. मतलब through it can enter via blood, infected needle, infected blood और body secretion, and it can also cross placenta. और मदर से उनके फीटस को भी, अगर इन्फेक्टेड मदर है तो उनके फीटस को भी वो हो सकता है. दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसप्लासेंटल. तो यहाँ आप नोट डाउन कर सकते हो आपके नोटबुक में ट्रांसप्लासेंटल. सो हेपेटाइटिस बी. अभी हम कुछ और हेपेटाइटिस के बारे में पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ नोट्स. जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है, हेपेटाइटिस A, C, D एंड E आर ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस विच अफेक्ट्स द लीवर. उसमें जो मैंने रेड से मार्क किया है हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस E, दे हैव फीकल ओरल रूट जस्ट लाइक टाइफॉइड एंड कोलेरा. दीज आर food and waterborne diseases, hepatitis A and hepatitis E. They are also called as infectious hepatitis. Mainly hepatitis A is called as infectious hepatitis. तो आप नोट डाउन कर सकते हो, hepatitis A is called as infectious hepatitis. फिर hepatitis C and D, their mode of transmission is parenteral through blood. Okay, parenteral मतलब without involving digestive tract, it is called parenteral.
ठीक है. सो दिस वॉज सम फीचर्स अबाउट हेपेटाइटिस. तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए यहाँ पर बाहर के क्वेश्चंस मतलब आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस आ सकते हैं हेपेटाइटिस पे, तो इसलिए हमने इसे थोड़ा डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया. फिर एक स्पेसिफिक टेस्ट है फॉर हेपेटाइटिस बी दैट इज़ कॉल्ड एज ऑस्ट्रेलिया एंटीजन टेस्ट. तो यहाँ पर आप नोट डाउन कर लेना, हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड एक टेस्ट ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलियन एंटीजन टेस्ट. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर हेपेटाइटिस बी वायरस. सो दिस वॉज अबाउट हेपेटाइटिस. अभी हम कुछ और अदर वायरल डिसीजेज देखते हैं, जैसे रेबीज़ कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोफोबिया. इट इज़ कॉज बाय SSRNA रेबीज़ वायरस ट्रांसमिटेड बाय बाइट ऑफ इन्फेक्टेड डॉग. फिर मीजल्स, मम्स, रूबेला, हर्पेस, चिकन पॉक्स, स्वाइन फ्लू, स्मॉल पॉक्स, काउ पॉक्स, बर्ड फ्लू, इन्फ्लुएंजा, येलो फीवर, इबोला, कोरोना. दीज आर ऑल वायरल डिसीजेस. उसमें के कुछ डिसीजेस के बारे में हमने यहाँ मेंशन किया, जैसा मीजल्स इज कॉज बाय रूबेला वायरस, मम्स इज कॉज बाय पैरामिक्सो वायरस, रूबेला इज कॉल्ड एज जर्मन मीजल्स. ओके, रूबेला इज कॉज बाय rubella virus, it is called as German measles. Yellow fever is caused by flavivirus. It is also mosquito borne disease. It is transmitted with the bite of mosquito Aedes aegypti, just like dengue and chikungunya. तो yellow fever is also mosquito borne disease. फिर SARS, that is severe acute respiratory syndrome. Coronavirus is a SSRNA, उसका जीनोम है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. फिर इन्फ्लुएंजा कॉज बाय ऑर्थोमिक्सोवायरस, इन्फ्लुएंजा इज फ्लू. फिर हमने पढ़ा था न्यूमोनिया पर्टेवक्स, स्वाइन फ्लू एंड बर्ड फ्लू. फिर स्मॉल पॉक्स कॉज बाय वेरियोला वायरस एंड चिकन पॉक्स कॉज बाय वेरिसेला जूस्टर वायरस. तो स्टूडेंट्स प्लीज़ ये नोट डाउन कर लेना आपके नोटबुक में. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इसमें लिस्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर वायरल डिसीज, मैच द कॉलम आते हैं, ट्रू और फॉल्स आते हैं. अगर थोड़ा डिफ़िकल्ट पेपर आता है नीट में और एप्लीकेशन बेस्ड डिसीजेस का, तो ये पार्ट कवर होता है. ठीक है. सो दिस वॉज अबाउट सम वायरल डिसीजेस. नाउ वी विल स्टडी अबाउट वन मोर वायरल डिसीज, दैट इज़ AIDS. So now we will study about AIDS, that is acquired immunodeficiency syndrome. It is a disorder of cell mediated immune system of the body. In this disorder there is reduction in the number of helper T cells. तो T lymphocytes का नंबर कम हो जाता है. It's a viral disease caused by the virus human immunodeficiency virus. It is a retrovirus. इसके फैमिली को लेंटी वायरस फैमिली भी कहते हैं, तो आप नोट डाउन कर सकते हो. It was first noticed in USA in 1981. AIDS infections were detected in India for the first time in Chennai in the year 1986. So ये जो अपडेटेड नोट्स हमने आपको जो PDF सेंड किया है उसके मदद से आप ये पॉइंट्स पढ़ सकते हो. देन वी विल स्टडी अबाउट मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, use of contaminated needles, syringes, blades and razors, sexual intercourse with the infected person, from infected mother to child through placenta, उसे कहते हैं transplacental, organ transplantation by infected person. फिर AIDS cannot be transmitted by insect bites, shaking hands, sharing towels, coughing and sneezing, sharing utilities like telephone, sharing swimming pools. Incubation period is variable. It may be from few months to many years, usually 5 to 10 years. अभी हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस. तो आप देख सकते हो वायरल जीनोम है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, इंटीग्रेज एंजाइम, ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स एंड प्रोटीन कोड्स. तो ये जो GP है दैट इज़ ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स. सो ये उसे हेल्प करते हैं होस्ट के सेल्स को इन्फेक्ट करने में. फिर आप देख सकते हो लिपिड बायलेयर, फिर P17 और P24 एंटीजेनिक प्रोटीन कोट. ओके, सो दीज आर प्रोटीन कोट्स P17 एंड P24. फिर आप देख सकते हो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. फिर उसमें और भी एंजाइम्स होते हैं, इंटीग्रेज और प्रोटीएज. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की क्या खासियत है, क्या वो होस्ट के
जीनोम को कंट्रोल करके खुद के प्रोजेनी वायरस बनाने की एबिलिटी रखता है. इट कंट्रोल्स द होस्ट सेल, द न्यूक्लियस ऑफ द होस्ट सेल, एंड मेक्स इट्स ओन प्रोजेनी वायरस. उनके खुद के वायरस पार्टिकल्स को तैयार करता है. फिर आप देख सकते हो ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के दो यहाँ पर स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं SsRNA. तो इसका बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. द स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस, इट हैज़ ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स GP120, GP41, protein codes P17, P24, then lipid bilayer, single stranded RNA, the enzymes like reverse transcriptase, this is a very very important enzyme, and other enzymes which facilitate the infection, integrase and protease. अब हम देखते हैं replication of the retrovirus inside the host cell. तो आप यहाँ देख सकते हो रेट्रोवायरस हैविंग वायरल प्रोटीन कोड, ये जो सर्कल है दिस इज़ वायरल प्रोटीन कोड. तो वायरल RNA कोर, वायरस इन्फेक्ट्स नॉर्मल सेल. तो द एनिमल सेल इज शोन हैविंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. सो वायरल RNA इज इंट्रोड्यूस इनटू द सेल, देन दिस RNA प्रोड्यूस वायरल DNA. वो RNA से DNA बनता है. तो RNA से DNA बनने की प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. ये कौन से एंजाइम की वजह से पॉसिबल है? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. तो बेटा आपको याद रखना है वायरल RNA इज इंट्रोड्यूस इनटू द सेल एंड इट प्रोड्यूसेस इट्स DNA. वायरल DNA इज प्रोड्यूस. क्यों वो DNA प्रोड्यूस कर रहा है? क्योंकि उस DNA को होस्ट के DNA के साथ जुड़ना है. तो वायरल RNA सेल में इंट्रोड्यूस हो रहा है और अपना एक DNA तैयार कर रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. तो वो खुद का वायरस का अपना एक खुद का DNA तैयार होता है, दैट इज कॉल्ड वायरल DNA. देन दैट वायरल DNA इज इंटीग्रेटेड इनटू होस्ट जीनोम. तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है होस्ट का न्यूक्लियस और ये होस्ट के DNA के साथ वायरस का DNA इंटीग्रेट हो गया है और वो होस्ट के न्यूक्लियस पर कब्जा कर लेता है. कब्जा करके वो न्यू वायरस RNA प्रोड्यूस करता है, नए RNA पार्टिकल्स तैयार करता है, SsRNA पार्टिकल्स तैयार करता है. इज़ प्रोड्यूस बाय द इन्फेक्टेड सेल. तो अभी ये जो सेल है एनिमल सेल या होस्ट सेल जिसे इस रेट्रोवायरस ने इन्फेक्ट किया है, दैट इज़ एक्टिंग एज अ HIV फैक्ट्री एंड इट इज़ प्रोड्यूसिंग न्यू वायरस पार्टिकल्स जो आप देख सकते हो. इन दिस वे मेनी वायरस पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस. फिर ये जो न्यू वायरस रहता है वो दूसरे और सेल्स को, होस्ट के और सेल्स को इन्फेक्ट करके यही साइकिल कंटिन्यू होता है. पहले से हम देखते हैं रेट्रोवायरस का RNA इंट्रोड्यूस हुआ एनिमल सेल में, उससे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के मदद से वायरल DNA बनाया इनसाइड द एनिमल सेल. वो वायरल DNA इनकॉर्पोरेट हुआ, जुड़ गया होस्ट के जीनोम से. होस्ट के जीनोम पे कब्जा करके उसने अपना खुद के वायरल RNA पार्टिकल्स बनाए और नए वायरसेस को असेंबल करके नए वायरसेस तैयार किए. एंड दिस वायरसेस कैन इन्फेक्ट अदर सेल्स ऑफ द होस्ट. नोट, ये जो इन्फेक्टेड सेल रहता है होस्ट का, जिसे मैं यहाँ पर ऐसा मार्क करके बताता हूँ, दिस इन्फेक्टेड सेल कैन सर्वाइव. ठीक है, इसका डेथ नहीं होता है. इसका डेथ नहीं होता है तो ये नए नए वायरस पार्टिकल्स बनाते रहता है. ये कारण से HIV बहुत डेंजरस इन्फेक्शन है एंड इट हैज़ नो क्योर. क्योंकि वो जो वायरस रहता है वो होस्ट के सेल पर कब्जा करता है लेकिन उसे मारता नहीं है. तो होस्ट की इम्यूनिटी कम होते जाती है, इट डिक्रीजेस, जो अभी हम पढ़ेंगे कुछ और पॉइंट्स के मदद से. जैसे वायरस मेनली अटैक करता है मैक्रोफेजेस को. ठीक है, तो मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, जो इन्फेक्टेड ह्यूमन के मैक्रोफेजेस रहते हैं, दे कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस एंड मैक्रोफेजेस एक्ट लाइक अ HIV फैक्ट्री. तो ये क्वेश्चन आता है, द होस्ट सेल मैक्रोफेजेस एक्ट लाइक डैश, तो इट एक्ट लाइक अ HIV फैक्ट्री. फिर HIV enters into the other cells like helper T lymphocytes, replicates and produce new progeny और डॉटर वायरस. नए वायरस उसके डॉटर पार्टिकल्स, डॉटर वायरसेस तैयार करता है. फिर ये ब्लड के थ्रू और दूसरे हेल्पर T lymphocytes पे जाते हैं और ऐसे ही होस्ट के इम्यून सिस्टम को वीक कर देते हैं और इसके कारण होते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, जो आगे आप पढ़ोगे. फिर during this period person suffer from episodes of fever, diarrhea and weight loss.
Due to decrease in number of helper T lymphocytes, person starts suffering from infections called as opportunistic infections. फिर कुछ पॉइंट्स है, जैसे acute HIV infection progresses over time to asymptomatic and then to early symptomatic HIV infection. मतलब the infected individual doesn't show symptom, that stage is called asymptomatic stage, and then to early symptomatic HIV infection, and then finally after some years it progresses to AIDS infection. AIDS का long form है acquired immunodeficiency syndrome. Syndrome means a group of symptoms. Why it is called acquired? Because it is acquired during the lifetime of an individual, as it is not a congenital disease. Okay, so it is acquired immunodeficiency syndrome. It is acquired during the lifetime of an individual. The infected individual passes to various stages, that is asymptomatic stage, then early symptomatic stage, and then progressive AIDS infection when the T cell count is below 200 सेल पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड. तो इसमें क्या होता है, उस पेशेंट का उनका WBC काउंट बहुत कम हो जाता है. ओके, वाइट ब्लड सेल काउंट बहुत कम हो जाता है. CD4 मतलब एक एंटीजन है, क्लस्टर ऑफ डिफ्रेंशिएशन. मैं डिक्टेट करता हूँ, आप नोट डाउन कर लेना. एक वो एंटीजेनिक मार्कर है, सिर्फ आपको उसका लॉन्ग फॉर्म पता होना चाहिए, CD, क्लस्टर ऑफ डिफ्रेंशिएशन. फिर इन पेशेंट्स में क्या होता है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का प्रमाण ज़्यादा होता है. अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन मतलब ऐसे इन्फेक्शन जो नॉर्मल इम्यून सिस्टम या नॉर्मल इम्यूनिटी जो पर्सनस में रहती है उनमें वो नहीं होते. लेकिन एड्स में क्या होता है, द पर्सनस इम्यून सिस्टम बिकम्स वेरी वीक, इसलिए उन्हें ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो नॉर्मल लोगों में नहीं पाए जाते. द सिम्टम्स ऑफ एड्स आर प्राइमरीली द रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन दैट डू नॉट नॉर्मली डेवलप इन इंडिविजुअल्स विद हेल्दी इम्यून सिस्टम. तो एड्स में पर्सन की इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाती है, इसलिए उनमें कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो नॉर्मल पर्सनस में या द पर्सनस हैविंग हेल्दी इम्यून सिस्टम में नहीं पाए जाते. ऐसे इन्फेक्शंस को कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन. तो आप वो नोट डाउन कर सकते हो. माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्शन, ठीक है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस ड्यू टू डिक्रीज इम्यूनिटी. फिर कुछ दूसरे वायरल डिसीजेस, फिर कुछ फंगल डिसीजेस और कुछ पैरासाइट जैसे टॉक्सोप्लाज्मा पैरासाइट इन पेशेंट्स को अफेक्ट करता है. और ये सब सेकेंडरी इन्फेक्शन के कारण, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के कारण वो पेशेंट की डेथ हो सकती है. सो दीज आर कॉल्ड अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन. फिर कोई एड्स के कुछ पेशेंट्स में एक कैंसर कॉमन है कॉल्ड एज कापोसिस सार्कोमा. तो आप ये नोट डाउन कर लेना, कापोसिस सार्कोमा. ओके, सार्कोमा इज कनेक्टिव टिश्यू ट्यूमर. फिर द सिम्टम्स, मतलब एट द फर्स्ट इन्फेक्शन, ड्यूरिंग फर्स्ट इन्फेक्शन, जब वो पेशेंट में पहले बार इन्फेक्शन होता है तो फीवर, द सिम्टम्स आर फीवर, लेथार्जी, फेरेंजाइटिस, हेडेक, रैशेस, वीकनेस, वेट लॉस. ठीक है, आफ्टर सीवियर इन्फेक्शन वेट लॉस इज़ अ कॉमन फीचर, देयर वेट डिक्रीजेस रैपिडली. फिर डायग्नोसिस में इसके लिए एलाइजा एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे नाम का टेस्ट है. इट यूजेस एंजाइम्स लाइक अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंड peroxidase. So this we will study during biotech application. Enzyme link immunosorbent assay, ELISA. अभी के लिए आपको सिर्फ याद रखना है, ELISA is a diagnostic test for AIDS. फिर confirmatory test है Western blotting test. Western blotting test में it detects antibodies in patient serum. तो आप लिख सकते हो it detects antibodies in the patient's serum. Okay, so this is about confirmatory test for AIDS. Western blotting, it involves detection of antibodies. These antibodies are proteins. These antibodies are proteins in the patient's serum. फिर ट्रीटमेंट के लिए एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स. ये जो रेट्रोवायरस है HIV, उसके अगेंस्ट जो ड्रग्स यूज़ होते हैं, दीज आर कॉल्ड एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स. These are helpful to prolong the progression of disease. These are used combinedly called as highly active
एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, HAART, highly active antiretroviral therapy. It includes drugs like zidovudine, azithromycin एंड डिडानोसिन. आपको सिर्फ इसके नाम याद रखने. फिर एनसीईआरटी के पेज नंबर 155 पर एक क्वेश्चन पूछा है कि इंडिविजुअल्स हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन आर एट रिस्क ऑफ HIV इन्फेक्शन. तो उन्होंने कहा है फाइंड आउट एंड मेक अ लिस्ट ऑफ सच कंडीशंस. तो ये लिस्ट है, आप लिख सकते हो. द पर्सन सफरिंग फ्रॉम थैलासेमिया, हीमोफीलिया एंड सिकल सेल एनीमिया. तो इन पेशेंट्स को लगता है रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि यह है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, थैलासेमिया, हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया, जो हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स पढ़ते वक्त. तो इनको ब्लड देने से पहले उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग होनी चाहिए ताकि इन पेशेंट्स में HIV इन्फेक्शन ना हो. द ब्लड शुड बी स्क्रीनिंग मतलब स्क्रीनिंग में वो टेस्ट करते हैं क्या ब्लड शुड बी नेगेटिव, इट शुड बी फ्री ऑफ नेगेटिव ऑफ HIV वायरस, इट शुड बी फ्री ऑफ HIV वायरस. साथ ही साथ स्क्रीनिंग करते हैं प्लाज्मोडियम पैरासाइट की. प्लाज्मोडियम भी उस ब्लड में नहीं होना चाहिए और HIV वायरस भी नहीं होना चाहिए. इट शुड बी malaria parasite negative and HIV negative blood, so it can be transfused safely to those persons who require the blood, like the persons suffering from thalassemia, hemophilia और sickle cell anemia. तो इन पेशेंट्स के लिए और प्रॉपर स्क्रीनिंग होना चाहिए ब्लड का. बाकी भी एक्सीडेंट के पेशेंट्स के लिए हर एक कोई भी जो पेशेंट जो नीडी होता है ब्लड लॉस के कारण जिसे ब्लड देना पड़ता है, तो वो जो ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है, जो ब्लड दिया जाता है, उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग होती है. दैट ब्लड शुड बी फ्री ऑफ HIV वायरस. फिर अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ एड्स. तो यहाँ पर जैसा लिखा है वर्ल्ड एड्स डे, इट्स ऑन 1 December टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग एड्स. फिर एज एड्स हैज़ नो क्योर, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन. फिर आपको पता होना चाहिए NACO, दैट इज़ नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, एंड अदर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आर डूइंग अ लॉट टू एजुकेट पीपल अबाउट दिस इन्फेक्शन. WHO हैज़ स्टार्टेड अ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स टू प्रिवेंट स्प्रेडिंग ऑफ HIV इन्फेक्शन. ब्लड बैंक में का जो ब्लड रहता है इट शुड बी सेफ फ्रॉम HIV, इट शुड बी फ्री ऑफ HIV, प्रॉपर स्क्रीनिंग शुड बी डन, ensuring the use of only disposable needles or syringes should be used which are disposable. Then use of mechanical contraceptive devices like condoms and free distribution of condoms by the government organization to prevent sexually transmitted disease AIDS. Then controlling drug abuse are some of the features which are or some of the methods which are applied for prevention of AIDS. तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वायरल डिसीजेस इंक्लूडिंग एड्स. सो दिस वाज अबाउट द टॉपिक ऑफ वायरल डिसीजेस. थैंक यू.